हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देखो, आज मैंने सही बोला, आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं बोला, आज मैंने बोला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रैक्टिस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जहां हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता दूं, इस कोर्स का स्ट्रक्चर मैं बता दूं, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ इस कोर्स का स्ट्रक्चर। देखो, इस कोर्स में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रैक्टिसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस during the class. You are solving few questions with me of every chapter. We are completing chapter wise questions. We have already completed introduction to stress and strain, then axial loading, then torsion, and today we are going to solve some questions of shear force and bending moments. Okay, so now the idea of this course is to develop a thought process within you, so that how you have to approach towards a question, how you have to solve a question. When you look at the question, what you have to think about the question, how you are going to approach, what should be the first thing that you need to find, what should be the next thing that you need to find, where are you going to get stuck. These are the things that I want to develop in you. Okay, so it's very important that you understand the basic conceptual questions, then only you can solve the difficult ones. Okay, so most of the questions in gate from this chapter, this shear force and bending moment, are very easy. Okay, so you don't have to solve a very complicated problem of shear. See, there can be a very complicated problem of strength of material in shear force and bending moment diagram, but the thing is that in gate they won't get into so detail, that they will not give you so many loading. There is a concentrated load, there is uniform distributed, there is uniformly varying, then something else, some equation they will give of the load. That won't they won't do that. Okay, they will ask very basic, very conceptual questions, and if you can solve conceptual questions, you can solve difficult ones as well. All right, so let me introduce myself. My name is Shivam Ranjan. My name is Shivam Ranjan. This is my Telegram channel, which you should join for PDFs. Join for PDFs, because all the PDFs I'm sharing here only. All the PDFs I'm sharing here only, because at one place you will have all the PDFs compiled, so that your digital library can be found very easily. You need strength of material, you can go here. You need thermodynamics, you can go here. Even I'm sharing some books of different subjects as well. Whatever I find with me, I'll share there only, in this group only. Okay, so this is a basically not a discussion group. You cannot discuss your doubts here. For your doubts or anything, if you want to talk to me, you can text me, mail me here, or text me on my personal Telegram account. This is my personal Telegram account. You can search for Ranjan Singh Amman, and you can reach out to me for your any personal doubts, whether it is related to studies or motivation or anything that you are facing, any strategy that you are not able to plan anything. Okay, so you can just reach out to me, drop a text, and we can discuss whatever your issue is. Okay, most importantly, please subscribe to our channel. We are a small channel, but we request your support. Please show us some love. Please share this channel link with your friends. Whoever is preparing for gate, it is going to be their one stop solution for some subjects. Not every subject, I'm not going to take every subject on this channel, obviously I cannot, but I'll be taking fluid mechanics very soon. I have already completed thermodynamics practice course. If you haven't checked that, please check it. It is a mind-blowing series. Students have shown so much love. I didn't expect that you will be showing this much love, but if when you have shown me this much love, then only I could start strength of material. Okay, now again I'll tell you, all those South Indian friends who are going to watch this series, they can do one thing. They can try attempting the questions, because most of the coursework will be in Hindi. Okay, so you can try attempting the questions. Okay, then you can watch my solution, and even if you are not able to understand, don't worry. Just drop me a text. Drop me a text that you are not able to solve this problem, and I will help you with that. I will help you with that in complete English. Don't worry about it. Okay, just attempt the questions, and if you are not able to solve it, then reach out to me. I'll explain those questions in complete English. All right, chalo. So let's start about. So we have already done stress resistance, torsion, and axial loading. These are the things that we have already done, and today we are going to deal with shear forces and bending moment. ठीक है, shear forces and bending moment आज हम लोग करने वाले हैं. ऑल राइट, तो मैं आपको फिर से बता दूं, शियर फोर्सेज एंड बेंडिंग मोमेंट के अगेन बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते. आपको कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जैसे ये बीम है, यहाँ एक वो भी लग रहा है, यूडीएल भी लग रहा है, एक आपका कंसंट्रेटेड लोड भी है, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी है, तो सब कुछ लगा दिया यहाँ एक ही जगह पे, और फिर आपको बोलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो. इतने मुश्किल सवाल वो देते नहीं है. क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम जाएगा. ठीक है, तो बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं रहेगा. आपको देखो, कुछ चीजें समझो. ठीक है, जब आपको क्वेश्चंस में देखना होगा कि आपको कब पूरा पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, कब आपको बस कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, तो मैं अगेन थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको पहले बता देता हूँ. क्वेश्चंस पर जाने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हालांकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते नहीं है,
ठीक है, ज्यादातर प्रैक्टिस की बात है ये। शियर फोर्स एंड थ्योरेटिकली मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और बहुत फॉर्मूलाज भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, या फिर बेंडिंग मोमेंट ही रखते हैं अभी के लिए, डायग्राम्स तो हम खुद ही ड्रॉ करते हैं ना। चलो, ऑलराइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, टाइप्स ऑफ बीम। अगर मान लो कैंटिलीवर बीम बोलता हूँ मैं, कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है, एक एंड पे फिक्स होगा, अदर एंड पे हैंगिंग होगा, ठीक है। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम बोलता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलूंगा, ठीक है, तो सॉरी, ये बीम कुछ ऐसा होगा, एक एंड पे हिंज सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये रोलर कभी कभी ऐसा भी दिखता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रोलर कभी कभी वो ऐसे भी दिखाते हैं, ओके। इसका मतलब ये होता है ना कि आप ब्रिजेज पे भी देखोगे ना, एक जगह पे हिंज रहेगा, एक जगह पे रोलर रहेगा, क्यों? सो दैट वो एक्सपेंशन अलाउ हो पाए, ठीक है। अगर मान लो ओवरहैंग बीम बोलता है, ओवरहैंग बीम बोलता है, तो वो बीम कुछ ऐसा होगा, ओके। दिस इज काइंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बाय दिस रीजन इज ओवरहैंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो ऐसे बीम्स जो होंगे ना, ऐसे बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, लीवर, फिक्स बीम, ये सब इनडिटर्मिनेट बीम्स हो जाते हैं। तो ये हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बस डिटर्मिनेट बीम्स के साथ ही डील करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें बस डिटर्मिनेट बीम्स के साथ ही डील करते हैं, तो मैं यही तीन बीम अभी रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक चीज होता है बीम विथ इंटरनल हिंज होता है, एक बीम्स विथ इंटरनल हिंज, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। सपोज ये एक बीम है मेरा, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, ओके, एंड यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, ओके, एंड हियर इट इज एज अ रोलर सपोर्ट। तो कुछ ऐसा बीम होता है। तो इसमें क्या होता है, दिस पॉइंट इज इंटरनल हिंज। तो आपको इंटरनल हिंज के केस में आपको एक बात याद रखनी है, एक सेकंड देना मुझे बस, ओके। चलो ना, अगर मैं एक्सटेंशन की बात, इंटरनल हिंज की बात करूं, तो बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज इक्वल टू जीरो, ये बात आप याद रखेंगे। बेंडिंग मोमेंट इंटरनल हिंज पे जीरो होगा, राइट। बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज जीरो होगा, क्लियर है। चलो, उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लोड तो ये दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं हमारे पास, ओके। तो एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग, ठीक है। तो इनके केस में जो है, हम जब एरिया अंडर द लोडिंग डायग्राम निकालेंगे, एरिया अंडर द लोडिंग डायग्राम, डायग्राम विल गिव मी टोटल लोड, टोटल लोड, ठीक है। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ओनली, ध्यान से, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आप इससे ये तरीका लगा के आप, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, assume the loads to be acting at the centroid of the loading डायग्राम। कोई ये होशियारी नहीं करेगा कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया, उसको एक यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड लोड बनाया, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड बना के उसके साथ आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर रहे हैं।
ये मत करना। बस ये देखो इसका यूज कहाँ आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज आता है जब आपका आप रिएक्शंस कैलकुलेट करोगे ना हिंज पे, तो आपके पास बीच में अगर आपका कोई भी हिंज ये लोड आ जाता है ना, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो फिर आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि आप इंटीग्रेट करके भी करोगे तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, मगर जब हम करते हैं कि हम उस लोड को हम अपने सेंट्रॉइड पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन के हम मोमेंट इक्वेशन में डाल के, मोमेंट बैलेंस इक्वेशन में डाल के हम रिएक्शंस आसानी से फाइंड कर लेते हैं, जो हम क्वेश्चंस में आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आगे हम देखेंगे। ठीक है, दो चीजें आप जान लो फिर। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बेंडिंग मोमेंट हम निकालते कैसे हैं, तो शियर फोर्स के लिए हम क्या करते हैं ना, टोटल ट्रांसवर्स लोड, ध्यान से, टोटल ट्रांसवर्स लोड मतलब एरिया परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं में लोड्स होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। टोटल ट्रांसवर्स लोड ऑन ईदर साइड, चाहे आप किसी भी साइड ऑफ ले लो, सेक्शन के किसी भी साइड पे, चाहे राइट से देख लो सारे ट्रांसवर्स लोड या लेफ्ट से देख लो सारे ट्रांसवर्स लोड, तो आपका वो शियर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट इज टोटल मोमेंट ऑन इधर साइड, यहाँ भी ऑन इधर साइड। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ नहीं, एक तरफ लेके और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, दैट इज डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज, फिर मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज आपका इंटीग्रल स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, राइट, दिस इज स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, राइट। और अगर मैं यही लिखूं डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स, राइट, शियर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऑब्वियसली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दिस इज, अरे, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली इसका यूज कहाँ आता है, एम बी माइनस एम ए करोगे आप तो इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एक्स आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग, सॉरी, शियर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन बी एंड ए, राइट, बी एंड ए के बीच का जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो आपका बता देगा कि आपका एम बी माइनस एम ए कितना होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं, चलो आगे की बात अगर देख लो आप, एक चीज बात जान लो, तो अगर मान लो मेरा बीम कुछ ऐसा है, विथ, दिस इज माई बीम विथ नो, इस मान लो किसी एक सेक्शन में, ये सेक्शन ऑफ द बीम है, जिस सेक्शन में आपका कोई भी शेयर फोर्स नहीं है, एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर कोई भी शेयर फोर्स, कोई भी आई एम सो सॉरी, कोई भी आपका ट्रांसवर्स लोड नहीं है, एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर कोई भी ट्रांसवर्स लोड नहीं है, यानी कि लोड इंटेंसिटी जीरो है। अगर लोड इंटेंसिटी जीरो है तो W इज इक्वल टू जीरो है, अगर इस सेक्शन में W इज इक्वल टू जीरो है, इट इम्प्लाइज है डी एस, यानी कि S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि S इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो दिस इज माई बीम, तो मैं इसको पहले तो ये सेक्शन ले लूँ, ठीक है, और इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा आएगा, एक डब्बा बनेगा, दिस विल बी योर शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, कांस्टेंट, पहले वो यहाँ उठेगा, यहाँ से वो उठेगा, फिर कोई लोड नहीं है तो वो कांस्टेंट चलेगा और फिर यहाँ पे गिर जाए। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, इस फोर्स का मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, तो आप देखो, अगर S इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से M इज इक्वल टू, या फिर एम बी माइनस एम ए, उस सेक्शन के बीच में एम बी माइनस एम ए विल बी इक्वल टू सी, सी इंटू ए बी, जो भी लेंथ होगा। ठीक है, तो दिस इज अ लीनियरली वैरिंग, राइट, या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, m एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू सी एक्स, एंड दिस रिप्रेजेंट्स लीनियरली वैरिंग, राइट। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इसी रीजन में कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि एक लीनियर वेरिएशन के साथ आएगा, और फिर यहाँ पे कुछ वो जीरो हो जाएगा। ये कुछ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, इन दोनों का रिलेशन, ये रिलेशन आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे, इसी तरह अगर हम देखेंगे, मान लो ये एक बीम है, ये एक बीम है, ओके, एंड इसके ऊपर मैंने लगाया है, इसके ऊपर जो है आपका लग रहा है यूडीएल, इसके ऊपर लग रहा है आपका कुछ यूडीएल ऐसा, समझ जाना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेकर जल्दी जल्दी कर देता हूँ, सो दैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना। ओके, तो इससे यूडीएल, यूडीएल, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि लोड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है मेरा। अगर लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, राइट। इसका मतलब एस इज इक्वल टू कुछ सी इंटू एक्स का रिलेशन आएगा, वो जो कि हमारा पिछले केस में क्या था, लीनियरली वेरिंग था, हो गया ये लीनियरली वेरिंग। और आपको यहीं से दिख रहा होगा एम जो होगा वो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, राइट। तो जरा इसका अगर हम वो देखेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखेंगे, तो आपका ये हो गया आपका बीम का लेंथ, और इसका जब हम शियर फोर्स देखेंगे तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा, शियर फोर्स विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ओके, फ्रॉम जीरो एज अ लीनियर रिलेशन, जीरो से सम पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। एंड देन इफ विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी का अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आप देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो रहा है, शियर फोर्स आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इसका मतलब कि शियर फोर्स अगर आपका इंक्रीजिंग है, तो आपका यानी कि बेंडिंग, ये बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी इंक्रीज होगा। अभी स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट तो इंक्रीज करके कुछ ऐसा भी, ये दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट, राइट। ये दोनों बेंडिंग मोमेंट तो आपका बढ़ ही रहा है ना, यहाँ कुछ है, 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 हर हर केस में आपका बेंडिंग मोमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। बट एक है इंक्रीजिंग स्लोप, एक है डिक्रीजिंग स्लोप, तो आपको ध्यान ऐसे रखो रखो आप, इंक्रीजिंग स्लोप मतलब क्या, जीरो से 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जीरो से 90 डिग्री, तो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप। अगर वही हम बात करें डिक्रीजिंग स्लोप की, डिक्रीजिंग स्लोप की, तो इसका मतलब क्या, 90 से 0 डिग्री, दिस इज व्हाट डिक्रीजिंग स्लोप मींस, 0 डिग्री से 90 डिग्री हो गया इंक्रीजिंग स्लोप, और 90 डिग्री से 0 डिग्री ये हो गया डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, 90 डिग्री ये है, 0 डिग्री ये है, 90 से जीरो आ गया, 90 से आ गया हम जीरो, 90 से जीरो, देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, राइट, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, जीरो से 90 ऐसा, 90 से जीरो ये है 90, ये है जीरो, 90 से जीरो ऐसा, 90 से जीरो ऐसा, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से, ये मेरा तरीका है, और कोई भी फॉलो करता है अच्छी बात है, ठीक है। दैट्स हाउ आई थिंक, दैट्स हाउ आई थिंक कि आपका जो है स्लोप ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, ठीक है, वो आप यहाँ से समझ सकते हो, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे मान लो आपको इसी में बनाना है, आपका आपको पता है शियर फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज कर रहा होगा। अब स्लोप ये कैसा इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है मुझे अगर, तो देखो जरा मैं यहाँ बनाता हूँ और आप मेरे साथ टैली करना अपना बना के, ठीक है। तो इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है मुझे, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ओके, जीरो से 90 मुझे इंक्रीज कराना है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आराम से ये नीचे गिर जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। इसी तरह अगर जब आप यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड जाओगे ना, तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में शियर फोर्स आपका पैराबोलिकली वैरी करेगा, और ये देखो एस प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यहाँ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यहाँ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट, डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट। अगर आप यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में जाओगे ना, तो मैं यहाँ बस यहाँ लिख देता हूँ, आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, या फिर मैं कर ही देता हूँ यार, ना क्यों वेस्ट करना टाइम। चलो, दिस इज योर बीम, this is your uniformly varying load, okay, this is your uniformly varying load, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके बना दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, यहाँ पे क्या है, ये W इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, W इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे S इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा, एंड M इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आएगा, यानी कि क्यूबिक पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी दो स्पैन बना लो,
this is for shear force, this is for bending moment. Okay, and this will be your again increasing slope because load intensity is increasing, so slope will be increasing. So this is your SFD, where S is proportional to x square, and this is also your BMD. ये कुछ सिमिलर सा ही दिखेगा, सिमिलर सा ही कुछ दिखेगा, बट यहाँ S इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक क्यूबिक पैराबोला है। तो आपको एग्जाम में अगर कहीं भी लिखेगा ना, आपको ये देख के आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि ये क्यूबिक है या पैराबोलिक है, वो आपको साफ साफ लिख देंगे ये 2 डिग्री कर्व है या 3 डिग्री कर्व है, राइट। चलो, उसके बाद जो है कुछ कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आप ध्यान रखना कि एट पॉइंट लोड, एट पॉइंट लोड शियर फोर्स डायग्राम सडनली चेंजेस। मतलब क्या सडनली चेंजेस? मतलब क्या, आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि मान लो ये है आपका एक बीम, ये है आपका एक बीम, ठीक है। यहाँ आपका ये रिएक्शन है आर एट ए, यहाँ एक रिएक्शन है आर एट बी, और यहाँ एक मान लो पॉइंट लोड है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लोड है डब्ल्यू। तो देखो, आप ऐसे हमेशा बनाया करो। मैं कैसे बनाता हूँ, ये एक बीम बनाया मैंने, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, ये पॉइंट लोड है, मतलब क्या, ये अपने साथ ऊपर ले जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम को ऊपर ले गया, ठीक है। फिर मैं आगे गया, आगे गया, कुछ नहीं है, यहाँ जैसे ही पॉइंट लोड आया ये अपने साथ नीचे ले जाएगा। अब ये कितना ऊपर ले जाएगा कितना नीचे ले जाएगा, ये इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ये यहीं छोड़ सकता है, यहाँ छोड़ सकता है, यहाँ छोड़ सकता है, यहाँ छोड़ सकता है, ठीक है, और फिर ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये ऊपर ले जाएगा, तो ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज जब मैं हम लोग बनाएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं अभी मैग्नीट्यूड नहीं है तो कौन सा डायमेंशन सही होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ इसको, ठीक है। बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहला पॉइंट था। उसके बाद जो एक पॉइंट होता है मोमेंट एट एनी पॉइंट, अगर मान लो लग रहा है मोमेंट एट एनी पॉइंट, पॉइंट, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सडनली चेंजेस, ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सडनली चेंजेस। और यहाँ एक और बात याद रखना, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम पे मोमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ जब रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये होता है वेयर शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, चेंजेस इट्स साइन, और एनी कपल इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो जब भी आपका कुछ ऐसा केस होगा जहां पे शियर फोर्स भी चेंज कर रहा होगा साइन, किसी एक शियर फोर्स डायग्राम बनाया आपने और देखा आपने कि शियर फोर्स भी साइन चेंज कर रहा है और उसी बीम में कहीं पे एक कपल भी ऐड कर रहा है, तो आप दो जगह चेक करोगे, या तो आप शियर फोर्स जहां पे साइन चेंज कर रहा है वहां चेक करोगे, या तो वहां मैक्सिमम होगा, या फिर जहां पे कपल एक्ट कर रहा है आप वहां पे चेक करोगे, वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। इस चीज को लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो होता है, ये होता है वेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस साइन, ध्यान से, ही चेंजेस साइन। बहुत लोग ये समझते हैं कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होता है या जीरो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका साइन चेंज करता है, जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है, राइट, राइट। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हॉगिंग से सैगिंग, हॉगिंग से सैगिंग। आई होप आपको हॉगिंग और सैगिंग पता होगा। दिस इज हॉगिंग, ओके, एंड दिस इज सैगिंग, ओके, ठीक है। एस फॉर सैगिंग, एस फॉर स्माइलिंग, स्माइलिंग का फेस कुछ ऐसा बनता है, तो दिस इज स्माइलिंग, तो दिस इज सैगिंग। ऑपोजिट इसका हॉगिंग, ऑपोजिट इसका हॉगिंग, ठीक है। एच फॉर हैप्पी याद करके मत करना, एच फॉर स्माइलिंग मतलब ऐसा ऐसे याद रखना। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो यहाँ तक की थी बेसिक बातें यही थी, ठीक है, जो मुझे डिस्कस करना था आपके क्वेश्चन से पहले। तो ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। आज बहुत ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन के मूव पे मूव करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर, अभी अभी मैंने बताया शियर फोर्स जीरो, नो, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इज साइन, यस, चेंजेस इज साइन है ये, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इज साइन, यस, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, नो, दीज आर नो कंडीशन, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर, दैट इज बी, ठीक है, बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, मैं फिर से लिख दूं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर
याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है पीएसयू में, तो भर भर के पूछा है, बेंडिंग मोमेंट changes its sign। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर द शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन, देखो ध्यान से, मैं कुछ बेसिक एमसीक्यू भी लाया हूँ सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपसे बहुत आर आर तिरछा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा, इसलिए मैंने एमसीक्यू भी लाया है कुछ। ठीक है, तो फॉर द शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इट शुड कैरी फॉर द शियर फोर्स टू बी कांस्टेंट, मतलब क्या, टू बी यूनिफॉर्म मतलब क्या, मान लो ये बीम है, दिस इज योर बीम, इतना बड़ा क्यों बनाया मैंने, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, फालतू इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, दिस इज योर बीम एंड शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट, मतलब क्या, शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म, मतलब शियर फोर्स यूनिफॉर्म कुछ ऐसा ही होगा, तभी तो शियर फोर्स यूनिफॉर्म होगा, राइट। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा और यहाँ पे फोर्स कुछ नीचे की ओर लग रहा होगा, या फिर एक और केस हो सकता है, यहाँ यहाँ पे एक और केस हो सकता है कुछ ऐसा, दिस इज योर बीम एंड दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में R1 और यहाँ पे कुछ रिएक्शन R2 ऐसा, यहाँ पे कुछ R1 ऐसा, यहाँ पे R2 ऐसा, कुछ यही दो केस हो सकते हैं, यही दो केस हो सकते हैं, यूनिफॉर्म है तो, राइट। अभी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका थ्रू आउट द स्पैन है, मतलब क्या, इस पे क्या लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, देखो देखो, अगर इस पे दो तीन तरह का लोडिंग समझो, क्या इस पे अगर मान लो कहीं पॉइंट लोड होता तो यहाँ पे आता और शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता, कर रहा है क्या, नहीं, मतलब पॉइंट लोड तो नहीं लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन नहीं हो सकता है, ओके। यूडीएल ओवर इंटायर स्पैन, यूडीएल अगर मान लो होता है इसमें, मान लो अगर मैं यूडीएल लगाता, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आता उसके कारण तो शियर फोर्स उठता, लेकिन फिर इस यूडीएल के कारण तो गिरना शुरू करता लीनियरली, वो भी नहीं हो रहा है शियर फोर्स, राइट, तो यूडीएल भी नहीं हो सकता, राइट। टू कंसंट्रेटेड लोड इक्वली स्पेस, अगेन अगर मान लो टू कंसंट्रेटेड लोड होता ऐसा या चाहे ऐसा कुछ भी होता, तो आपका जो शियर फोर्स है वहां सडन चेंज होता, अगर उल्टा होता तो ऊपर जाता या नीचे आता, वो भी नहीं हो रहा है, तो मतलब सी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, जिसको कुछ नहीं आता है ना वो ऐसे भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेगा, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेगा, और ये सी भी नहीं हो सकता है, मतलब डी तो आंसर है। कपल एनीवेयर ऑन द स्पैन, देखो कपल मान लो लगा दिया मैंने, तो मैं आपको बोला था कि कपल से आपका शियर फोर्स डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कपल अगर आपका लग रहा है तो उससे शियर फोर्स डायग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो ये कपल कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये जो है आप इस पे अगर मान लो इस पे कुछ ऐसा कपल लगा दोगे, तो देखो इसका एंड अपोजिट में कपल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या ये दोनों मिलके ऐसा कपल बना रहे हैं, देखो बन रहा है ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो ये ऑपोजिट कपल एक डेवलप हो रहा है, एक ऑपोजिट कपल डेवलप हो रहा है, राइट, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, रिएक्शंस जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, और इनका नेचर कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अभी देखो मान लो अगर ऐसा कुछ डायग्राम होता, तो ये अगर मान लो कपल होता आपका, कुछ ऐसा कपल होता, तो इस पे रिएक्टिव कपल कैसा बन जाए, उल्टा ऐसा, देखो रिएक्टिव कपल कैसा बन जाए, ऐसा बन जाए, तो R1 R2 अगेन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और इसका कपल का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसके उल्टा, इसका उल्टा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, तो कपल एक्ट कर रहा होगा, तो ही हमारा थ्रू आउट द स्पैन शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, थ्रू आउट द स्पैन, ध्यान से, थ्रू आउट द स्पैन, किसी एक सेक्शन की बात नहीं की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था शियर फोर्स डायग्राम का एरिया बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दैट इज ds/dx = w, मैंने अभी अभी बोला हुआ है, यानी कि और मैंने बोला हुआ है dm/dx, इससे नहीं, इससे, और मैंने बोला हुआ है dm/dx = s, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dm = s dx, ठीक है, तो यहाँ से mb-ma एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम का एरिया क्या देता है, उसके बेंडिंग मोमेंट का चेंज, चेंज इन लोड नहीं, चेंज इन शियर फोर्स नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग नहीं, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन दोस पॉइंट्स, ठीक है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन दोस पॉइंट्स, ठीक है, सो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्लियर है, ठीक है। आपको पीडीएफ में कोई भी दिक्कत आती है प्लीज मुझे बता दिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन फिगर बिलो
shows the shear force diagram for the beam. Okay, bending moment in the portion BC. Bending moment in the portion BC. देखो bending moment BC में क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए BC में कोई क्या shear force है, shear force जीरो है, मतलब क्या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। अगर shear force जीरो होगा इन इन BC, shear force is equal to zero. It implies that bending moment is equal to constant. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट विल बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ऑब्वियसली नॉन जीरो कांस्टेंट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, यस इज जीरो, नहीं वेरीज बिटवीन लीनियरली, नहीं पैराबोलिकली, नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से बनेंगे ना, वो इसी रिलेशन पे बनेंगे, वो इसी रिलेशन पे बनेंगे, दैट इज डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आज के थंबनेल में भी ये डाला है, ये एक रिलेशन, और डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस। आप बहुत सारे मेरे थंबनेल्स देख लोगे ना, तो उससे भी आपका बहुत सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलो यार, क्यों गंदा करना। ठीक है, आगे बढ़े, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज टू बीम्स ए बी एंड बी सी पिन ज्वाइंटेड एट बी। पिन ज्वाइंटेड एट बी, अगेन मैंने बोला था पिन ज्वाइंटेड एट बी का मतलब क्या हुआ, ये एक इंटरनल हिंज की बात कर रहा है, इंटरनल हिंज की बात कर रहा है, पिन और हिंज एक ही बात है। द बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या कुछ होगा, मैंने अभी अभी बताया था, बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, और मैं डायरेक्ट जीरो मार के आगे बढ़ूंगा, डायरेक्ट जीरो मार के आगे बढ़ूंगा, और ऑप्शन भी हमारा ए ही आंसर है। ठीक है, आंसर भी हमारा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांच क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान कर लिए, अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी, एट पॉइंट बी विल बी, इस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, पहले वो देखो। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, एट बी विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑन ईदर साइड, सॉरी मोमेंट, ऐसा लिखो, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेज ऑन ईदर साइड ऑफ, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेज ऑन ईदर साइड, किसी भी एक साइड ऑफ बी। तो आपको क्या लगता है मैं किधर से निकालूं, क्या मैं राइट से निकालने जाऊंगा, नहीं निकालने जाऊंगा, क्यों, राइट में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दिख रहा है, यूडीएल दिख रहा है, कुछ एक एक्स्ट्रा, कुछ एक एक्सटेंशन लगा के उसके ऊपर यूडीएल लगा रखा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेफ्ट से मुझे कम फोर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में, तो मैं देखूंगा, जरा इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं, सॉरी, जरा मैं इसको अपने नोट से हटा के जरा इस पे रिएक्शंस लगा दूं मैं। तो मान लो मैंने रिएक्शन ये माना ऐसा, ठीक है, ये 6 किलो न्यूटन है एट 1.5, सो दिस लोड कैन बी कन्वर्टेड एज 6 इंटू 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। ठीक है, और इसको हम एज्यूम कहाँ करेंगे, एट द सेंट्रॉइड, एट द सेंट्रॉइड, सो 1.5 का आधा 0.75 होगा, 0.75 होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो जरा इस सी पे देखो, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी, एंड दिस विल ऑल्सो बी 0.75, राइट, 0.75। ठीक है, एंड दिस इज 9, दिस इज 9। अभी इस सी पे देखो, ये पूरे लोड को अगर हम सी पे ट्रांसफर करेंगे, इस पूरे लोड को अगर हम सी पे ट्रांसफर करेंगे, तो कैसा ट्रांसफर होके आएगा वो देखो। तो लोड का इंटेंसिटी तो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस एक मोमेंट भी आएगा। ठीक है, तो पहले इस लोड को हम पहले यही बनाते हैं। तो दिस लोड इज समथिंग लाइक दिस, this load is something like this acting at the centroid, and concentrated load that is equal to 7.5 into 0.6, and this is equal to 7.5 into 0.6, 7.5 into 0.6, and that is equal to 4.5, 4.5 किलो न्यूटन, राइट। और इस लोड को भी जरा मैं सेंट्रॉइड पे एक्ट करा लूँ, तो इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ होगा, और ये इसका वैल्यू होगा 7.5 into 0.6, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4.5, राइट, 4.5। क्लियर, क्लियर, यानी कि यहाँ पे 4.5 कुछ आ गया, 4.5 किलो न्यूटन, और ये लोड तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, मगर इसके साथ एक मोमेंट भी ट्रांसफर होगा, दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, एंड दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू 7.5 into 0.3, दिस मोमेंट इज 4.5 into 0.3, लोड इज 4.5, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.6 का आधा, दैट इज 0.3, सो इट इज इक्वल टू
13.5, 4.5 into 0.3 that is 1.35, 1.35, ठीक है। और फिर जरा इसको लगा दो यहाँ, यहाँ डी यहाँ है, तो मैं डी का एक पहले रिएक्शन एट डी ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा 7.5 दैट इज 4.5 यहाँ लग रहा होगा, एंड दिस 4.5 विल बी एक्टिंग एट 2/3, 2/3 ऑफ डी, 2/3 of DE is equal to 2/3 of 0.6, and that is equal to 0.4, right? 0.4. So this distance will be equal to 0.4, and this distance will be equal to 0.2. Clear है? Clear है? क्या ये फिगर क्लियर हुआ आपको? सारे लोड्स क्लियर हुए? मैंने अभी सारा लोड उठा के रखा है, अब मैं रिएक्शंस फाइंड कर देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको रिएक्शन फाइंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, सबसे पहले रिएक्शन निकालोगे। तो क्या सारे लोड्स क्लियर होंगे? आई होप सारे लोड्स क्लियर होंगे। मैंने सारे लोड्स को इंडिविजुअली वैल्यूज निकाला, उसको पूरे एक जगह बाहर था तो उसको मैंने बीम पे ट्रांसफर किया। बीम पे कैसे ट्रांसफर किया? पहले मैंने उस लोड का मैग्नीट्यूड निकाला, उस मैग्नीट्यूड को हूबहू उतार दिया बीम पे, और उसके कारण एक मोमेंट आएगा, उस मोमेंट को भी मैंने बीम पे ले आया, उस मोमेंट को भी मैं बीम पे ले आया। तो चलो मैं इसको जरा मैं क्लियरली अपने नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लूं, और फिर मैं सॉल्व करने जाऊंगा जरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, न्यू पेज ऐड कर लूंगा, ठीक है। मैं हो जाओ, परेशान मत किया करो, चलो। तो दिस इज रिएक्शन एट ए, दिस इज रिएक्शन एट ए, दिस इज 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन, here I was getting 4.5 kilonewton and a force of sorry 1.35 कपल, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक रिएक्शन एट बी आ रहा था, यहाँ पे मुझे एक 4.5 का एक और लोड आ रहा है, ठीक है। इतना ही लोड है, जरा डिस्टेंसेस लिख दूं मैं। दिस इज 0.75, ओके, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, and let's call it as a point E. So this distance is also 0.75. Right, BC is something they have given us. BC is 1.5, CD is 1.5, and DE is also 1.5. Right. So this is 1.5. This is also 1.5, and E is not here. E is at the end. Is at the end, and this is also E, and this is 1.5. But हमने निकाला हुआ है 0.4, इसको निकाला हुआ है हमने, right? 0.4 अगर हमने इसको निकाला हुआ है, दिस इज 0.6, तो दिस इज 0.2, राइट। ये है हमारा 0.2, ठीक है। तो यही कुछ लोडिंग है, यही कुछ हमारा लोडिंग है, ठीक है। तो चलो जब मोमेंट बैलेंस करते हैं, सो लेट्स बैलेंस द मोमेंट। आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर ए विल बी गिविंग अस आर ए का मोमेंट ऐसा, ठीक है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, हाँ, और ऐसे वाले मोमेंट को, सॉरी, इसके ऑपोजिट दैट इज दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज टेकिंग एज नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा साइन कन्वेंशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आर ए इंटू अबाउट डी, मोमेंट अबाउट डी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी विल बी इक्वल टू 0, ये मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो आर ए इंटू आर ए मल्टीप्लाइड बाई 0.1.5 and this is 4.5, right, to 4.5, and this will be equal to 9 into, जो भी ऑपोजिट मोमेंट्स है उसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। 9 इंटू 0.75, 1.5, 3.75, 3.75 प्लस 4.5 इंटू 4.5 इंटू 1.5, 1.5, और ये भी इसके आरे के सेंस में है, तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, या फिर मैं इसको ऐसा ही करता हूँ, चलो यही अभी के लिए इसको ऐसा ही रखता हूँ। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि आर ए और ये मोमेंट सेम ही सेंस में है, 1.35, राइट, और ये 4.5 भी इसी सेंस में है, तो ये भी प्लस होगा 4.5 इंटू 0.4, एंड दिस मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ रही होगी कुछ, और वो मुझे बता दो जल्दी से। दिस विल बी 3.75 इंटू 9 प्लस 4.5 इंटू 1.5 माइनस 1.35 माइनस 4.5 into 0.4, 0.4 divided by 4.5, and this value is coming out to be 8.3 kilonewton, 8.3 kilonewton। आरे आ गया, आरे आ गया, तो अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज बी पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, राइट। बी पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू आर ए इंटू 1.5 minus 9 into 0.75, and that is equal to 8.3 into 1.5 to 1.5
minus 9 into 0.75 and that value is coming out to be 5.7 kilonewton kilonewton। आई होप सारे वैल्यूज मैंने सही निकाले। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 9 इंटू 3.75 प्लस 4.5 इंटू 1.5, 4.5 ही होगा ना। 7.5 इंटू 7.5 इंटू 0.6, 4.5 राइट, 4.5। और यहाँ पे सारे वैल्यूज आई थिंक सही निकाले हैं। यहाँ गलती की है, देखो यहाँ गलती की है। ये 1/2 इंटू इतना होगा, सो 4.5/2, 4.5/2 एंड दैट इज इक्वल 2.2, दिस इज 2.2 इज ऑल्सो 2.5 के लिए हमारा आंसर रेंज में आ गया था, मगर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, 1/2 इंटू, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल राइट, इट्स अ ट्रायंगल, सो 1/2, सो दिस इज 2.25, दिस इज 0.25, so here I will write 2.25, 0.5। let's check इससे कितना आंसर में हमारा चेंज आता है, इससे हमारे आंसर में कितना चेंज आता है, चेक आउट। 9 इंटू 37.9 इंटू 3.75 प्लस 4.5 इंटू 1.5 माइनस 1.35 माइनस 2.25 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 4.5। बहुत चेंज नहीं आ रहा है, 8.5 आ रहा है राइट। 8.3 आ रहा था पहले, अभी 8.5 आ गया, तो 8.5 इंटू 1.5 माइनस 9 इंटू 0.9 इंटू 0.75 इक्वल टू 6, एग्जैक्ट 6 किलोमीटर आ गया। तो अच्छा लगा मुझे, ठीक है। एग्जैक्ट 6 इज गुड, जस्ट 5.5 टू 6, दैट्स वेल विद इन द रेंज। ठीक है, तो आपको बहुत आराम से करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आराम से करना होगा। तो देखो, आपका थोड़ा सा लोडिंग देखो इंक्लूड किया तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बस दिखाया है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं। अभी तो मैंने बस सब यूडीएल ही लिया है, इसमें यूवीएल भी डाल देगा। जैसे बस एक छोटा सा यूवीएल लिया था मैंने, एक छोटा सा यूवीएल लिया था मैंने। एक तो यूवीएल में दिक्कत ये भी आती है 2/3 डिस्टेंस पे, अभी कभी कभी 2/3 आप इधर से लोगे इधर से लोगे, लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इतने लेंदी क्वेश्चन को आप वो गेट में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मगर मैंने आपको दिखा दिया ये क्वेश्चन बन सकता है और इसमें कोई भी कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ कैलकुलेटर से होगा। तो पीएसयू में भी आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के हैं। हालांकि पीएसयू में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा। गेट में थोड़े चांसेस होते हैं, तो मगर इसलिए मैंने बोला आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप स्टेप वाइज चलोगे, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको गेट में ये नहीं सोचना है कि मुझे 3 मिनट के अंदर ही करना है। 5 मिनट लो और आराम से करो। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को एक चीज, कि गेट में क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि 1 मिनट वाले भी हो और 5 मिनट वाले भी हो। आप गलती ये करते हो कि हर क्वेश्चन को 3 मिनट में करना चाहते हो, नहीं। आपको 1 मिनट वाले क्वेश्चन को 5 मिनट नहीं देना है और 5 मिनट वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश नहीं करनी है। जो क्वेश्चन लंबा है उसको तमीज से करो, जो क्वेश्चन छोटा है उसको जल्दी करो, आगे निकलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आज 20 क्वेश्चन लाए हैं, 10 करेंगे, बाकी आप करोगे। वाओ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन द फिगर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओ माय गॉड। अभी पहले तो ये सारे के सारे लोड जो है वो इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइंड है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे अपने ट्रांसवर्स लोडिंग के हिसाब से। ए पे हम लगाएंगे रिएक्शन, रिएक्शन एट ए। ई पे हम एक रिएक्शन लगाएंगे, रिएक्शन एट ई। राइट, अगेन मैं रिएक्शंस के डायरेक्शन को अपने मन से ले रहा हूँ, आपको कुछ भी ले सकते हो, ऊपर से लेना है ऊपर से लो, नीचे से लेना है नीचे से लो। और देखो एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पे रिएक्शन एट ए वर्टिकल आएगा और हर बार मैंने आपको क्या बोला था, एक हिंज सपोर्ट पे आपका वर्टिकल रिएक्शन भी आता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है। मगर अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लेते आ रहे थे, क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किसको बैलेंस करने आएगा? अर्लियर केसेस में हमारे पास कोई भी along the axis of the beam, that is along AE, हमारा कोई भी फोर्स नहीं आ रहा था। तो वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आके किसको बैलेंस करेगा? जब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, राइट? राइट, मगर इस केस में आप देखोगे तो जैसे इस 6 किलो न्यूटन को मैं रिजॉल्व करूंगा, लेट मी रिजॉल्व दिस 6 किलो न्यूटन like this. Suppose this is your 6 किलो न्यूटन, राइट? सपोज दिस इज योर 6 किलो न्यूटन का लोड, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये लोड को जैसे ही मैं रिजॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास दो फोर्सेज आएंगे, दो फोर्सेज आएंगे। एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में बनेगा, राइट, और एक मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, मगर वो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा मेरा, क्या वो मोमेंट पे इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा।
उसका मोमेंट में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस पास कर रहेगा और वो डिस्टेंस जीरो, तो फिर वो उसका मोमेंट भी हमेशा जीरो आएगा। तो जो हम जो निकालेंगे ना, हम सिर्फ वर्टिकल ट्रांसवर्स लोडिंग लेके, ट्रांसवर्स लोडिंग के लोड्स को लेके हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। सो दिस इज 6 किलो न्यूटन, सपोज दिस इज 6, तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करता हूँ सबको, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा किया, इसको भी थोड़ा छोटा किया, और दिस वाज 6, so this is 6 sin 45, 6 sin 45, 6 sin 45 is equal to 4.24, this is 4.24, okay, then again यहाँ पे एक मैं 6 नहीं ले रहा हूँ, ये सीधे सीधे 4 sin 60 लेता हूँ मैं, 4 sin 60 is equal to 3.46, right, 3.46, so this is something 3.46, यहाँ पे मेरा लग गया 3.46 का, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पे भी मैं बस ट्रांसवर्स लोड को कंसिडर कर लूंगा फटाफट से, और इसको कर लिखूंगा मैं 3 sin 30, 3 sin 30, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5, 1.5, राइट, 1.5। अब मैं सॉल्व करूँ, देखो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मैंने कुछ नहीं किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को के साथ मेरा ये आरएच डील कर लेगा, आरएच उसको बैलेंस करके जीरो कर देगा, आरएच उससे मेरा मोमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, उससे मेरे मोमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, मुझे ट्रांसवर्स लोड्स के साथ मतलब है, राइट, मुझे बस अपने ट्रांसवर्स लोड्स के साथ मतलब है। तो जरा मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, पहले डिस्टेंसेस लिख लूं, ये दिस इज 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, लेकिन अगेन मोमेंट एट ई लेके, मोमेंट एट ई लेके सॉल्व कर लूंगा मैं, जरा मोमेंट एट ई निकालूंगा, summation at moment of e equal to 0, summation of moment at e equal to 0, it implies that ra into 12 will be equal to, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा, अगर दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, 4.24 इंटू 9, 3.46 इंटू 6 इक्वल टू 4.24 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3.46 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1.5 multiplied by 3, and from here I am getting RA is equal to 4.24 into 9 plus 3.46 into 6 plus 1.5 into 3 divided by 12, and that is 5.285, 5.285 किलो न्यूटन, राइट, सारे सारे लोड्स किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन। देखो इसमें यूनिट्स के साथ भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आपका आंसर हमेशा यूनिट सही मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज 5.285, राइट, तो आर ई भी निकाल सकते हैं, आर ई की जरूरत पड़ेगी मुझे, नहीं पड़ेगी शायद, चलो मैं आर ई भी निकाल लेता हूँ। सो आर ई, दिस आर ए वर्टिकल, आर ए वर्टिकल, एंड आर ई में बस वर्टिकल ही लोड आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4.24 प्लस 3.46 प्लस 1.5 माइनस 5.285, 5.285, बस वर्टिकल लोड्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो 4.24 प्लस 3.46 प्लस 1.5 माइनस 5.285 इज इक्वल टू सम वैल्यू, इसका 3.915, 3.915 किलोमीटर, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं दिखाता हूँ। जरा अगेन फिर से एक बार बीम को देखो और फटाफट से शियर फोर्स बनाओ। देखो जब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलेगा, कपल लग रहा है, नहीं लग रहा है, कपल नहीं लग रहा है, मतलब जहाँ शियर फोर्स चेंज होगा और अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो जरा देखो शियर फोर्स डायग्राम में बनाता हूँ, बहुत आराम से बनाऊंगा, पहला डायग्राम बना रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में इतना खूबसूरत डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5.285 रिएक्शन एट ए, 5.285 यूनिट ऊपर हो गया, ठीक है, दिस इज 5.285, 5.5 इतना यूनिट ऊपर है, वहां से लेकर अगले पॉइंट तक कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। उसके बाद जैसे ही 4.24 आएगा, जैसे ही मेरा लोड 4.24 का लोड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां से मेरा ये शियर फोर्स फिर से नीचे जाएगा, चलो मैं कलर बदल दूं यहाँ से, यहाँ पे मेरा शियर फोर्स 4.24 यूनिट नीचे जाएगा, 4.24 यूनिट नीचे जाएगा, और यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.285, 5.285 माइनस 4.24 इज इक्वल टू 1.045, 1.045, राइट, 1.0। फिर से यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर जैसे ही अगला लोड आएगा, अगला लोड क्या है, 3.46, तो यहाँ से फिर से 3.46 यूनिट नीचे जाएगा वो, राइट, वो यहाँ से फिर से 3.46 यूनिट नीचे जाएगा, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, 3.46 यूनिट्स नीचे जाएगा, ये पूरा 3.46 है, राइट, ये 1.4045 है, तो 3.46, 3.46 माइनस 1.045, एंड दैट इज इक्वल 2.415, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस 2.415। अगेन फिर से यहाँ से आगे बढ़ेगा, 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 और यहाँ पे फिर से 1.5 ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि 1.5 का फिर से नीचे जाएगा, सॉरी 1.5 नीचे जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका 1.5 का लोड लग रहा है, एंड दिस विल बी 1.5 मोर डाउन, यहाँ आ गया, एंड दिस लोड विल बी इक्वल टू
प्लस 1.5 एंड दिस वैल्यू विल बी 3.915। यहाँ पे वैल्यू होगा 3.915। क्या उतना ही है? हाँ उतना ही। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसा जाएगा और यहाँ पे 3.915 का रिएक्शन ऊपर, 3.915 का रिएक्शन हम ऊपर की ओर बना के ये अपना शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर पॉइंट। जरा मैं नेमिंग कर दूं पॉइंट पे, अगर बी सी डी, बी सी डी है, ओके दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई, राइट, दिस इज पॉइंट ई, राइट। तो देखोगे सी पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, सी पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। तो यही यही लिखता हूं पहले मैं, एट सी shear force changes sign, sorry bending moment कह रहा था मैं, shear force changes sign and there is no couple, there is no couple acting on the beam, acting on the beam, और ये simply supported beam है। so so maximum bending moment will be at will be at C। तो अब देखो C पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो C पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। तो मैक्सिमम bending moment is equal to bending moment at C, and that will be equal to bending moment at C is how much? RA, that is 5.285 multiplied by let me write the distance, C से डिस्टेंस 3 और 3 6 होगा ना, और ये इससे 4.24 से 3 यूनिट इंटू 6 प्लस 4.2 सॉरी माइनस माइनस 4.24 multiplied by 3, right? And that will be equal to 5.285 into 6, 5.285 into 6 minus 4.24 into 3, and that is equal to 18.99। तो मैं इसको 19 ले लेता हूँ, 19 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? मजा आया? मजा आया? जब मैंने आपको बोला था कि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए, तो मैंने सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए थे। पहले 2-3 चैप्टर में मैं आसान क्वेश्चन इसलिए करवा रहा था सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आप मेरे साथ फ्रिक्वेंसी मैच करा लो क्वेश्चन के, और फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 19 किलोमीटर मीटर, बट ये तो हमारा आंसर है। लेट्स चेक कि आंसर क्या दे रखा है। 18.5 से 19.5, सो दैट्स राइट, सो दैट्स राइट। ठीक है, ठीक है, कितने आसानी से किया हमने। देखो, निकालने को मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी निकाल सकता हूँ, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकाल दूंगा, मगर उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं। जब हमसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा तो हम मैक्सिमम के पास ही जाएंगे, फालतू इधर उधर घूमना नहीं है। ठीक है, हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है कि हमें सब कुछ आता है, हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकाल देंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब वो कन्वेंशनल पेपर में, कि आप यहाँ आर ए पे आर ए वर्टिकल आर ए हॉरिजॉन्टल दोनों लोगे, जरूरत नहीं है ना यहाँ। ठीक है, विदाउट साइन भी बोल दिया तो आपका साइन कन्वेंशन कुछ भी हो चले। चलो भाई आगे बढ़े। तो आपको इस क्वेश्चन इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन को लेके बहुत परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम इन द फिगर इज। देखो, आपको जब भी क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं देगा, ठीक है, अगर मान लो अगर क्वेश्चन में नो न्यूमेरिक डेटा है, अगर नो न्यूमेरिक डेटा वाले क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो आपके पास दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, या तो एनएटी होगा या फिर एमसीक्यू होगा, राइट। ठीक है, तो एनएटी में देखोगे कि आपका आंसर 0 और 1 सबसे पहले चेक किया करो, ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिक डेटा नहीं है, न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो आप बहुत कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे। तो या तो वो सब कट पिटा के 1 हो रहा होगा, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट लग के वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, अक्सर यही होता है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना, तो आप हमेशा चेक करोगे कैसे सॉल्व करना है उसको, एनालिसिस से सॉल्व करना है। मतलब आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस एनालाइज करना है, आपको बस एनालाइज करना है। यहाँ भी कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं है, यहाँ भी कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनालाइज करोगे। और कैसे करोगे वो भी बताता हूँ। जरा इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे हम। तो ये मैं क्यों मिटा दिया, चलो रहने देता हूँ आपके लिए, चलो बीच में, चलो ठीक है, इसको मैं एक डब्बे में रख के बोर्ड में डाल दूँ, यहाँ लिख देता हूँ यूजुअली, वरना लोग हर बार। ठीक है, ठीक है, चलो अभी देखो, यहाँ पे आपका कुछ रिएक्शन आ रहा होगा। पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ एक रिएक्शन आ रहा होगा, मान लो R1, यहाँ कुछ रिएक्शन आ रहा होगा R2। ओके, R1 R2 मतलब क्या, शियर फोर्स का डायग्राम पूछा है हमसे,
मतलब यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऊपर उठेगा, पक्की बात है उठेगा, ठीक है। और यहाँ से शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये जो लोड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, मतलब शियर फोर्स का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप होगा। एज, जरा देखो यहाँ मैं लिखूं, एज load intensity is intensity is increasing, let us slope of shear force diagram, so slope of shear force diagram will be increasing, right? तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बन जाए, कुछ ऐसा कर्व बन जाए, मतलब ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा से ऐसा आ रहा है, ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, क्यों? ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, क्यों? क्योंकि आपका 90 से जीरो की ओर जा रहा है, 90 से जीरो की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये भी डिक्रीजिंग स्लोप है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये जीरो से, इसको ऑप्शन डी करो, इसको ऑप्शन डी करो। और ये लीनियर वेरिएशन तो हो ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट स्लोप हो गया, लीनियर वेरिएशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बचाइए। और ये हो भी रहा है, क्यों? देखो, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 0 से 90 ऐसा मूव करता हुआ दिख रहा होगा। अगर देखोगे, आपको कहोगे यहाँ नहीं कर रहा है, तो थोड़ा और इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसा ही मूव करेगा, नहीं कुछ ऐसा ही मूव करेगा। तो 0 से 90 मूव कर रहा है, 0 से 90 मूव कर रहा है अगर, तो यही इंक्रीजिंग स्लोप है, यानी कि ये 0 से 90 मूव करना चाहिए। जब भी आप ऐसा लिखोगे ना, इंक्रीजिंग होना चाहिए, 0 से 90 लिख लो, उसके बाद 0 ड्रॉ करो, 90 ड्रॉ करो, फटाफट से यहाँ बगल में ऐसा करो, 0 90, ऐसा कर्व होना चाहिए, ऐसा कर्व होना चाहिए, ऐसा कर्व होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है। आंसर मारो आगे बढ़ो, आंसर मारो आगे बढ़ो, आंसर मारो आगे बढ़ो। क्यों? आपका देखो शियर फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा, क्यों क्यों कम होता जाएगा? यहाँ पे कुछ रिएक्शन के कारण ऊपर तो उठा हो, देखो जरा, देखो जरा, रिएक्शन के कारण वो कुछ ऊपर उठा, अब उस पर पूरा ये लोड अगर लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर बार बार लग रहा है, बार बार लग रहा है, तो वो शियर फोर्स को नीचे भेजता जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम को नीचे भेजता जाएगा, भेजता जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद भी नीचे लग रहा है तो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और फिर R2 पे एक बार अपवर्ड फिर से रिएक्शन आएगा, और अपवर्ड रिएक्शन आके वापस से उसको जीरो कर देगा, ठीक है। तो पहले R1 से नीचे गया, सपोज दिस इज माई बीम, सपोज दिस इज माई बीम, दिस इज माई बीम, पहले यहाँ से रिएक्शन गया, तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा हुआ। अब इस शियर फोर्स डायग्राम को बस नीचे होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, नीचे गया, 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 यहाँ तक नीचे गया। उसके बाद जैसे ही हम R2 पे पहुंचे, ये आखिरी एंड पे पहुंचे, फिर से एक रिएक्शन इसको ऊपर भेज दिया, फिर से एक रिएक्शन इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है, वही चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको इसमें भी दिख रहा था आपको कि शियर फोर्स आपका नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ ऊपर उठिए, यहाँ ऊपर उठिए। मगर इस केस में क्या होता, इस केस में क्या होता, आपको फिर यहाँ स्लोप चेक करना पड़ता, यहाँ पे आपको स्लोप चेक करना पड़ता, और यहीं पे आपका स्लोप जो है, आपका ये इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये इंक्रीजिंग स्लोप का क्वेश्चन है, ये डिक्रीज है आपका, यहाँ पे सॉरी ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, और आपका क्वेश्चन में इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए, दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर विल बी ए। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इसको इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको, तो मुझे एनालाइज करना होगा इसको। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। A beam ABCD एक बीम है, इज लोडेड बाय a force of 6 किलो न्यूटन, मतलब क्या, यहाँ पे एक 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा नीचे, दिस इज 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ओके। और अगर ये एक केबल से कनेक्टेड है, जो मुझे देख के लग रहा है, पहले पढ़ लेता हूँ एक बार, बाय द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द केबल पासेज ओवर अ स्मॉल फ्रिक्शनलेस पुली एट बी, मतलब कोई फ्रिक्शनलेस पुली है एट बी, एंड इज अटैच्ड टू वर्टिकल आर्म ई, ओके, ई पे अटैच्ड है, ऑल राइट। द बेंडिंग मोमेंट at section C will be, chalo let's draw the free body diagram and understand it. This is your beam ABCD, this is your beam ABCD, let's call it point B, let's call it as point B, let's call it as point A, let's call it as point C, and let's call it as point D. alright, चलो जरा फोर्सेस दिखाएं। तो मेरा जो फोर्सेज होगा वो होगा, पिंक से दिखा रहा हूँ, ये तो 6 किलो न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है, 6 किलो न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा है। अभी ये 6 किलो न्यूटन का लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है इस पर, और एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज केबल का, और केबल में टेंशन, एंड दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस पुली, एंड दिस इज लाइक दिस इज आल्सो 6 किलो न्यूटन, बिकॉज इट्स एन इनएक्सटेंसिबल केबल होता है, तो केबल में पूरा सिंगल केबल है, तो आपका पूरा टेंशन सेम रहेगा, तो दिस इज टी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ 6 और 6 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू mg करोगे, W इज इक्वल टू टी करोगे, यहाँ से आपका जैसे ही W इज इक्वल टू टी करोगे, तो टी आपका टेंशन 6 किलो न्यूटन आएगा, तो 6 किलो न्यूटन। अभी यही 6 किलो न्यूटन आपका इस वाले रोप में भी होगा, इंक्लाइंड रोप जो है वही 6 किलो न्यूटन होगा,
6 किलो न्यूटन। तो जरा इसका कंपोनेंट्स को अगेन हम ब्रेक कर ले, इसके कंपोनेंट्स को अगेन हम ब्रेक करने जाएंगे तो कुछ ऐसा कंपोनेंट्स आएगा इसका, दूसरे कलर से दिखा दूं मैं। इसका एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा, कितना कितना आएगा वो अभी बाद में निकालेंगे, पहले कुछ आएगा। ठीक है, इसको मैं F1 बोलता हूँ, इसको मैं F2 बोलता हूँ। ऑल F1 F2। अभी सी पे देखो कोई भी आपका ऐसे तो लोड नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पे जो आपका ये जो लोड है, ये जो है, ये 6 किलो न्यूटन के कारण दो लोड आएगा। इस 6 किलो न्यूटन को जरा हम रिजॉल्व करेंगे तो एक तो ये ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो देखो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है उसके कारण तो एक डायरेक्ट फोर्स आएगा जो कि होगा ऐसा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड के कारण हमारा डायरेक्ट फोर्स आएगा, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। दिस इज वन फोर्स, एंड एंड इसके कारण आपका कोई भी फोर्स तो आएगा, फोर्स ये भी फोर्स अगर आप ट्रांसफर करोगे तो डायरेक्ट आएगा, मगर इस फोर्स का एक मोमेंट भी आएगा, इस फोर्स का एक मोमेंट भी आएगा, और मैं बस वही मोमेंट लूंगा। देखो आप देखोगे ना तो इस फोर्स को भी आप ट्रांसफर करोगे, जरा देखो यहाँ, दिस इज पॉइंट सी, राइट, दिस इज पॉइंट सी, एंड हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग अ फोर्स, let's call it as F3, let's call it as F3 and F4, let's call it as F3 and F4, so this is F3 and this is F4, बट यहाँ इस F4 के कारण एक मोमेंट आ रहा है, F4 के कारण एक मोमेंट आ रहा है, और दैट मोमेंट इज समथिंग लाइक दिस, दैट मोमेंट इज समथिंग लाइक दिस, so this moment is equal to F4 into 1.5 into 1.5। क्या इतना ही लोड है? नहीं, एक और लोड है, एंड दैट इज, दो और लोड है एक्चुअली में हमारा, एक तो ये रिएक्शन है, राइट, इसको मैं पिंक से दिखा दूं, ये एक रिएक्शन यहाँ पे आर ए होगा, और एक रिएक्शन इस एंड पे होगा आर डी, आर ए एंड आर ए एंड आर डी। क्लियर है? क्या आपको इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर होगा, राइट। अब मुझे देखो कौन कौन से फोर्सेस से मतलब है, मैं वही फोर्सेस निकालूंगा, बाकी जिन फोर्सेस से मुझे मतलब नहीं है वो मैं नहीं निकालूंगा। F1 से मुझे मतलब है, देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, किससे किससे मतलब है, F1 से मुझे मतलब है क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, ट्रांसवर्स लोड है, मुझे, मैं निकालूंगा। F2 अलोंग द एक्सिस है, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट, तो F2 को मैं नहीं निकालूंगा। F3 मुझे निकालना होगा, यस। F4 की भी मुझे जरूरत नहीं है, मगर मुझे F4 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि मुझे ये मोमेंट के लिए F4 चाहिए, ये मोमेंट के लिए F4 चाहिए, तो मुझे कौन सा फोर्स चाहिए सबसे पहले वो देख लो। F1 चाहिए, F3 चाहिए और F4 चाहिए, राइट। तो जरा मैं तीनों फोर्सेस निकालू। F1 विल बी इक्वल टू 6 दिस एंगल थीटा, 6 sin theta, and let's call it theta is equal to, this is 2, this vertical is 1.5, so tan inverse 1.5 upon 2, tan inverse 1.5 upon 2, and that is equal to, theta is equal to shift tan inverse 1.5 upon 2, and that is equal to 36.86, 36.87 degree, 36.87 degree, right, 36.87 degree, right, and 6 sin 6 sin itna 6 sin answer is equal to 3.6, 3.6 3.6 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स। ठीक है, इसी तरह F3 जब मैं निकालने जाऊंगा, F3 विल बी इक्वल टू दिस 6 sin theta, and that will be equal to 6 sin theta, and that will be equal to, अगेन ये भी तो 3.6 ही होगा ना, 6 sin theta अगेन 3.6 ही होगा, और F4 विल बी इक्वल टू 6 cos theta, 6 cos 36.87, and that is equal to 4.799, 4.8, 6 cos theta is equal to 4.8 किलो न्यूटन, राइट, बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, ऐसे हमने निकाल लिया, ऐसे हमने निकाल दिया था। ठीक है, अभी देखो जरा मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, ये फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करूं, और सारे फोर्सेस अपने मतलब के बस फोर्सेस दिखाऊंगा इस बार। तो दिस इज माई बीम, दिस वॉज माई बीम, जरा मैं रफ स्केचिंग ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मेरा आर ए लग रहा था, राइट, यहाँ पे मेरा नीचे की ओर 6 लग रहा था, ऊपर की ओर 3.6 लग रहा था। ठीक है, तो रिजल्टेंट पे ले लूंगा। यहाँ पे मेरा नीचे की ओर 3.6 लग रहा है, एक मोमेंट आ रहा है, दैट इज F4 इंटू 5, राइट, F4 इंटू 1.5, F4 वॉज 4.8 इंटू 1.5, एंड दैट इज इक्वल टू 7.2, 7.2 का यहाँ पे एक लोड लग रहा है, और यहाँ पे बस मेरा एक रिएक्शन आ रहा है, दैट इज आर डी, बस इतना ही है, बस इतना ही है। लेट्स राइट डाउन द डायरेक्शंस।
लेट्स राउट डाउन द डिस्टेंसेस, दो 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 दो, ठीक है। दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, राइट। 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शन, लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शन। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइनली वो भी देख लेंगे एक बार। कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट सी विच इज जस्ट लेफ्ट टू द वर्टिकल आर्म। मतलब क्या, हमें बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट निकालना, हमें बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट निकालना सी पे, राइट। मतलब पहले हमें आर ए निकाल दूंगा या फिर आर डी निकाल दूंगा, तो पहले मैं आर ए निकालता हूँ। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू 0। तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई 6 मस्ट बी इक्वल टू 6 माइनस 3.6, जो कि मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 plus 7.2, because 7.2 is also in this sense only, that is anti-clockwise sense. So RA is equal to, is coming out to be 6 minus 3.6 multiplied by 4 plus 3.6 into 2 plus 7.2 divided by 6, and that is equal to 4 kilonewton. 4 kilonewton. Therefore, bending moment at C will be equal to 4 into 4 minus, this is 6 minus 3.6 multiplied by 2, and that is equal to 16 minus 4.8, and that is equal to 11.2 kilonewton, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मजा आया ये क्वेश्चन में। तो आपको अगर ये गलत फहमी हो रही थी कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उस गलत फहमी को निकाल देना। बहुत कॉन्सेप्चुअल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी तोप नहीं लगाया, बस चीजों को आराम आराम से सॉल्व किया। दैट्स द कॉन्सेप्ट। कोई बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या टिप्स दूं मैं उनको। अरे मैं आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, अगर आप क्वेश्चन को आराम से अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही मैंने ये इंक्लाइन देखा ना, वही मुझे पता चल गया था, वही मुझे पता चल गया था कि अब मुझे इसे रिजॉल्व करना होगा, अब मुझे इसे रिजॉल्व करना होगा। ये मुझे कैसे पता चला? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से। जब जब मुझे ऐसा इंक्लिनेशन दिखेगा तो मैं बता दूंगा कि मुझे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, इस हॉरिजॉन्टल वाले का मुझे कोई काम नहीं होगा, इस वर्टिकल वाले का काम निकालूंगा मैं बेंडिंग मोमेंट में। बेंडिंग मोमेंट में आपसे ये चीज आपके दिमाग में भी हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, आपको रट के नहीं रह बैठना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि ओके मुझे जब भी इंक्लाइन फोर्स दिखेगा बीम पे तो उसको मैं ब्रेक करूंगा, उसको मैं ब्रेक। अब जैसे ये समझ में आ गया ना आपको कि आपको उस फोर्स को, इंक्लाइंड फोर्स को आपको एक कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, वहीं आपको क्लिक कर जाएगा। कंपोनेंट में रिजॉल्व तो करूंगा मैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले का कोई काम आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले का कोई काम आएगा नहीं। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आज के लिए बहुत क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे, ठीक है। द बीम ए बी सी shown in the figure consists of cantilever part AB, okay this is cantilever part, ये वाला पार्ट जो है आपका कैंटिलीवर पार्ट है, and BC and attached to a simple span BC, okay by a pin, इसको at B करो, at B, pin at B, the pin can transmit a shear force but not a bending moment। देखो इसने साफ साफ लिख दिया है, reaction at point A would be, reaction at point A would be, A पे क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो चलो जरा इस बीम को ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बीम को क्या करोगे, अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व, दो अलग अलग पार्ट में रिजॉल्व कर लोगे, ओके। हिंट से खोल के आप इसको दो अलग अलग पार्ट में रिजॉल्व करोगे। तो दिस इज योर बी, दिस इज योर बीम, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज योर फिक्स्ड एंड दिस इज योर फिक्स्ड एंड दिस इज ए, राइट। और इस पे लोडिंग कैसा है, चलो मैं लोड को, यूडीएल है, इसको मैं क्यू ऐसा दिखा रहा हूँ, क्यू नॉट ऑप्शन में, इसको क्यू नॉट कर लेना, ठीक है। इसको भी मैं क्यू नॉट कर लेता हूँ, ठीक है, क्यू नॉट कर लेता हूँ। तो जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, क्या देखो, यहाँ मान लो मैंने मान लिया है एक लोड ऐसा, इस पे मैंने माना रिएक्शन ऐसा, दैट इज आर एच सी, आर एट सी। तो अगर मैंने इस पे डाउनवर्ड माना है तो इस पे अपवर्ड मानूंगा, दैट इज आर एट बी, आर एट बी। अपनी मर्जी से माना, अपनी मर्जी से माना आर एट बी, अपनी मर्जी से माना, बस इक्वल एंड ऑपोजिट माना, बस इक्वल एंड ऑपोजिट माना, ठीक है, बस इक्वल एंड ऑपोजिट माना, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो, मगर आपको मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाता हूँ। आप एक कैंटिलीवर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो आसानी से, मगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाना चाहता हूँ, इसलिए जरा सॉल्व करें इसको। सो पहले इस छोटे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस छोटे वाले पार्ट का लेंथ क्या है, L/3। इस छोटे वाले लेंथ, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L/3, राइट, इसका लेंथ है L/3, राइट। देयरफॉर summation of moment about C is equal to 0, it implies that RB multiplied by, RB को मैंने डाउनवर्ड ले लिया है L/3, प्लस ये Q नॉट L
बाई 3, दिस इज द टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाई ये लोड एक्ट का कर रहा होगा L बाई 6 पे, L बाई 6 पे, सो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा आर बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस क्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 18 इंटू 3 बाई एल, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट एल बाई 6, राइट, माइनस क्यू नॉट एल बाई 6, दैट्स व्हाट आर बी इज। देखो अगर आर बी मेरा माइनस क्यू नॉट एल बाई 6 है, देखो आर सी विल बी इक्वल टू, आर सी विल बी इक्वल टू आर बी प्लस क्यू नॉट एल बाई 3 इज इक्वल टू आर सी, ये लिख सकता हूँ मैं, राइट। सो आर सी विल बी इक्वल टू आर बी दैट इज माइनस क्यू नॉट एल बाई 6 प्लस क्यू नॉट एल बाई 3, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट एल बाई 6। आर सी मेरा क्यू नॉट एल बाई 6 हो गया, राइट। नाउ आर ए रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी plus reaction at C will be equal to Q naught L plus L by 3, that is the total load, and this is coming out to be 4 Q naught L, 4 Q naught L by 3, right, 4 Q naught L by 3, right, 4 Q naught L by 3। अगर RC मेरा इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होगा, RC मेरा इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होगा, therefore RA मिल जाएगा, and that RA will be equal to, that RA will be equal to 4 Q naught L by 3 minus Q naught L by 6, and that is equal to 8 Q naught L minus Q naught L by 6, and that is equal to 7 Q naught L by 6। मेरा ऑप्शन चेक करें, मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। 7 Q naught L by 6, yes, B is the right answer। बी इज द राइट आंसर। क्या किया हमने, देखो फिर से मैं एक बार समझा दूं। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, अपने हिसाब से आरबी निकाला, अपने हिसाब से आरसी एज्यूम किया मैंने, ये सब मेरा एजम्पशन है, सब मेरा एजम्पशन है। निगेटिव आया है मतलब मेरा एजम्पशन गलत है, मगर मतलब मेरा एजम्पशन गलत है। आरबी मेरा माइनस क्यू नॉट एल बाई 6 है ना, ये मेरा गलत एजम्पशन है। मगर जब मैंने निगेटिव साइन के साथ ही सॉल्व करना है, वैल्यूज डालना है, तो फिर मेरा एजम्पशन गलत भी हो तो भी मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो भी मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट, तो भी मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। ठीक है, तो आरबी, आरबी इंटू, और फिर मैंने मोमेंट बैलेंस करके आरसी, आरसी पहले आरबी निकाला, आरबी निकल गया तो आरसी निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने लोड बैलेंस किया, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग लोड ऑन बीसी। ठीक है, और फिर ये क्या है मेरा बैलेंसिंग लोड ऑन एंटायर बीम दैट इज ए सी। ठीक है, ये मेरा पूरे पे बैलेंसिंग है। मैं साफ से लिख, वरना कुछ लोग रो देंगे। बैलेंसिंग लोड ऑन एंटायर बीम AC। क्लियर है, क्लियर है, पक्की बात। तो यहाँ से हमारा बस वैल्यू पुट किया और फिर फाइनल आंसर आ गया, और फिर फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ तक की थी हमारी कहानी आज की। इसके बाद के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। अरे क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए, कुछ हो गया, अभी ठीक है ना, ऐसा ही था। ऑलराइट, तो करीब 11 12 13 ये मैचिंग है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से करना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो मैंने खुद से फ्रेम किया है, तो इसको और अच्छे से करना। इसके ऑप्शन देखो, 16 क्वेश्चन का ना ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो ध्यान से करना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करो सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ 2 डिग्री 1 डिग्री कर्व करके लिखा हुआ है, तो आप वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऑफ कैंटिलीवर कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है, जरा ध्यान से करना है इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा, बट करके देखना। ऑलराइट, चलो मैं जरा आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिख दूं। तो माय गॉड, 37 पेजेस का PDF हो जाता है, नहीं सकता ना हमारा। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ऑलराइट, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर ओन। फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी डाउट, केस ऑफ एनी डाउट, ठीक है।
आपको मैंने अब मुझे कैसे रीच करोगे मैंने बता दिया है। टेलीग्राम पे रंजन शिवम 1 पे आप मैसेज डालोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करो, प्लीज किया करो यार, कमेंट्स किया करो थोड़ा तो, कमेंट पे मुझे बताओ कि मुझे क्या मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है कोर्सेज आपको, ठीक है। यूट्यूब पे लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो गेट इंजन चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।